Thank you for, yeah. So we have started recording now, right? So we have seen in the last class that this is our grammar. These are the terminals, these are non-terminals, and etc. etc. Now suppose I have a grammar like this: E tends to E plus E star id. Okay, right now we are in the syntax analyzer phase. Okay, the second phase of the compiler. First phase हमने देख लिया is the lexical analyzer. वो क्या करता है? पूरा हाई लेवल कोड लेता है प्रोग्राम, उसको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट? आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, ये सब हमने देखा है. इट कन्वर्ट्स दैट इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. कैसे करता है? डीएफए से पैटर्न मैचिंग करता है बेसिकली, राइट? सपोज सिंटैक्स एनालाइजर के पास ये ग्रामर है एज अ इनपुट, and the stream of tokens that the lexical analyzer will send is suppose id plus id plus id. Suppose this is the stream of tokens that the lexical analyzer have sent to the syntax analyzer. Now the syntax analyzer will take this grammar and will take this stream of tokens and it will create some parse tree. But before creating the parse tree, we have seen sorry, how to write the production. Suppose you have this string or stream of tokens and you have this grammar. Now the question that comes is, can you derive this string, can you derive this string from this grammar? Is it possible or not? That we have to see. अगर आप derive कर सकते हो, if you can produce this string from this grammar, तो कोई syntax error नहीं है आपके प्रोग्राम में. If you cannot do this, then there is a syntax error. Okay, now let's see. Suppose this is my grammar and this is my input string. What I need id plus id plus id. Here I have three options. Definitely I have to start with E. The first thing that I have to do is I have to start with E. Okay, start symbol से start करना है. सबसे पहले E से start करेंगे. Now this is my terminal or this is my vertex. Now I have to expand this vertex. इसको मुझे expand करना है. To expand this, I have three options. Either I can use E plus E instead of E, or I can use E star E, or I can use ID. अगर मैंने ID ले लिया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा. इसके आगे we cannot move. Yes or no? If I expand this using ID, I cannot expand it any further, right? I have to stop at this point. So this is not the correct expansion. Yes or no, everyone? If I use this instead of this E, if I write E star E, is this a correct expansion or not? Is this a correct expansion? Is this a correct expansion? See, understand this thing very clearly in the class. Okay, the first few classes of compiler design are very important. अगर इसमें नहीं ध्यान से सुनोगे तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा पूरी क्लासेस में. Okay, so just pay attention. If you have any doubt, just clear it then and there itself. Because when we'll start parser, it's very interesting, but you have to be very clear with the basics of this. Okay, any doubts, anyone? Is this the correct expansion or not? And you have marks based on your class performance also. Okay, so just don't log in and sit. Tell me, shall I expand this E into E star E? No, right? Because we don't need multiplication sign. In our string, we have Yes, sir, only correct plus. है. E star E correct कैसे बेटा? We don't need star, right? Multiplication. खाली प्लस ही तो है हमारी स्ट्रिंग में. No, sir, मल्टीप्लिकेशन का. आपको E plus E लेना चाहिए. Yeah. So we have to take E plus E instead of this E, right? Now I've told you either you can go for leftmost derivation or you can go for rightmost derivation. मतलब सबसे लेफ्ट वाले वर्टेक्स को पकड़ो और उसी को एक्सपैंड करो. यहाँ पे हमारे पास सबसे लेफ्ट वाला एक ये है, एक ये है. तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है? सबसे लेफ्ट में ये वाला ई है, तो ये वाला ई एक्सपैंड होगा नाउ. ओके, दिस ई हैव टू बी एक्सपेंडेड. और फिर से हमारे पास यही ऑप्शन है, आई हैव टू एक्सपैंड दिस इनटू ई प्लस ई. और ये जो प्लस ई पहले लिखा था ये नीचे एज इट इज आ जाएगा. दिस इज माय थर्ड स्टेप. Now, which is the leftmost production? This E. Which is the leftmost vertex? This E is the leftmost vertex. So I have to pick this E and expand this. Now this will be expanded to ID plus E plus E. This is the next step. Step miss नहीं करना है. इस step के बाद अगर सीधे लिख दिया ID plus ID plus ID तो marks कट जाएंगे. You have to write every step. You are performing leftmost derivation means सबसे left वाले vertex को पकड़ना है और उसी को expand करना है. Now this is the leftmost vertex. So this will be expanded in ID. जो पहले है ये हो जाएगा ID plus E. Now the leftmost vertex is this E. So this will be expanded to ID plus ID plus ID. Okay. Survey can do this also after second. ID plus E. Okay. Yeah, you can do. You can do.
बट तुमने फिर सेकंड से थर्ड स्टेप आने में बेटा फिर तुमने जंप किया है, शेखर। इन द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यू हैव टू राइट आईडी प्लस ई, और फिर फोर्थ स्टेप में होगा आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। जंप नहीं करना है। ओके, सारे स्टेप बाय स्टेप जाने। तो ये हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और ये हो गया राइट मोस्ट डेरिवेशन। नाउ लेट्स सी इसका पार्स ट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है, पार्स ट्री में कुछ नहीं बनाना है, अभी जो लिखा है बस उसको एज अ ट्री फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद द रूट नोड, दैट इज द स्टार्ट सिंबल। द स्टार्ट सिंबल विल बी द रूट नोड ऑफ माय पार्स ट्री। सो ई विल बी द रूट नोड और द स्टार्ट सिंबल। अब इसको एक्सपैंड करना है मुझे, ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन यही है दैट आई विल एक्सपैंड दिस इनटू ई प्लस ई। इस तरह बनेगा पार्स ट्री का पहला लेवल। ओके, दिस ई इज एक्सपैंडेड टू ई प्लस ई। अब फिर वही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर लो या राइट मोस्ट डेरिवेशन कर लो, या पार्स ट्री में तुम रैंडम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं है, यहाँ पे पूरा पार्स ट्री एक साथ दिखता है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी एक्सपेंडेड टू ई प्लस ई, राइट, ई प्लस ई। और फिर ये ई एक्सपैंड हो जाएगा आईडी में, ये ई एक्सपैंड हो जाएगा आईडी में, ये ई एक्सपैंड हो जाएगा आईडी में। नाउ हाउ यू हैव टू रीड दिस पार्स ट्री। पार्स ट्री को पढ़ने के लिए यू हैव टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और जैसे जैसे नॉट आते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे, उसे बोलेंगे यील्ड ऑफ द पार्स ट्री। यू हैव टू गो फ्रॉम टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, and whenever you will encounter any vertex, any non-terminal, sorry, not vertex, any non-terminal, for example id is a non-terminal, plus is a non-terminal, id is a non-terminal, plus is a non-terminal. So whenever you will encounter any non-terminal, you have to write it down. So let's go from top to down, left to bottom. कोई non-terminal नहीं है, कोई non-terminal नहीं आया। Here I am having the first non-terminal, that is id, so उसको लिख दो top to down, left to right। So फिर ऐसे जाएंगे, second non-terminal मिला plus, फिर ऐसे जाते जाएंगे। Now I have encountered another id, again we will keep on moving, I have seen a plus, again we will keep on moving, I have seen a id। जैसे जैसे नॉन टर्मिनल्स आते जाएंगे you have to write it down, and yeah, now we have parsed this parse tree, से बोलते हैं parsing। This is known as yield of the parse tree। Is this yield of the parse tree exactly same as the input string or the input stream of tokens that the lexical analyzer have sent us? Yes or no? मतलब जो stream of tokens lexical analyzer ने भेजा है हमें, based on this stream of tokens and this input grammar I have created the parse tree। तो हमारी कोड में, in our code we don't have any syntax error। अगर ये नहीं बन पाता तो syntax error आती। okay, now let's see an interesting case। let's take this grammar only। अब बहुत ध्यान से देखना what I'm telling you। okay, now we are going to talk about ambiguity or ambiguous grammars। अच्छा, okay, by the way, which kind of grammar this is? For example, in your automata you have read na regular grammars, context free grammars, context sensitive grammars। ये कौन सी grammars है? Which grammar is this? Which grammar is this? Have you revised your automata? This is context free, right? Because the symbol of a context free grammar is A tends to beta B kind of a thing। okay, this is your context free grammar, or A tends to B alpha। okay, where A and B are vertices and alpha is your non-terminal। okay, this is the symbol or this is the representation of a context free grammars। okay, you have to revise your basics of automata। one more thing everyone, there will be few asynchronous lectures of some topics। for example, ये जो basics of automata है इसके लिए भी एक asynchronous lecture uploaded है। total 2 asynchronous lectures are uploaded already on your blackboard। okay, in the left hand side you will find some files there। for example, I have uploaded your book also। okay, so you can download it from there। in the second module or the second folder is of asynchronous lectures। okay, so 2 lectures अभी उसमें uploaded है। चाहे तो खुद से automata revise कर लो basics, चाहे तो वो लेक्चर भी देख सकते हो, इट्स अप टू यू, बट जस्ट रिवाइज इट। ओके, ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ लिया पता चला यही नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, राइट। नाउ सपोज आई गिव यू अ स्ट्रिंग 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 into 3। I ask you to draw a parse tree for this string and this grammar। okay, can you draw the parse tree for this string using this grammar? Draw it everyone। this 2 and 3 can be put in place of id। okay, because id is identifiers, you can put anything here, a b c d 2 anything 1 2 3। okay, so draw it quickly, can you put it? okay, देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो, you can make 2 parse trees here। obviously you have to start with the start symbol or the root node। okay, root node क्या होगा ट्री का, parse tree का जो start symbol है वही होगा e।
Now this E have to be expanded. Suppose I expand it like this. ओके फिर ऑब्वियसली इस तरफ एक्सपैंड नहीं करूंगा क्योंकि प्लस लेफ्ट में चाहिए ना, इस वाले ई को एक्सपैंड करूंगा इस तरह, मल्टीप्लीकेशन ई. एवरीवन गेट दिस पॉइंट. Parsed is very important. This Sunday you will have your test also. Today I will give you your assignment also. Okay, this Sunday you will have your test. Now see, सबका expansion ऐसे ही होगा. This E will be expanded to ID. This E will be expanded to ID. This E will be expanded to ID. राइट होगा. अब क्योंकि अब देखो इस आईडी की जगह 2 रख दो, इस आईडी की जगह 2 रख दो, इस आईडी की जगह 3 रख दो. नाउ ट्राई टू गेट द यील्ड ऑफ द पास ट्री, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू बॉटम, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू बॉटम. 2 मिला. नेक्स्ट नॉन टर्मिनल मिला प्लस, इसी तरह 2 मिलेगा, इनटू मिलेगा, 3 मिलेगा. राइट, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द पास ट्री. नाउ देयर इज नो शेकर, यू हैव टू ड्रॉ द पास ट्री नाउ. ओके, अभी वैसे प्रोडक्शन भी ठीक है बट ड्रॉ. नाउ इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूं. आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस. ई टेंड्स टू ई स्टार ई. सपोज मैं पहले ये वाला प्रोडक्शन ले लूं, ई टेंड्स टू ई स्टार ई, और फिर इस ई को एक्सपेंड कर दूं इनटू लाइक दिस. ये भी तो सेम आंसर देगा. ऐसे तो यही स्ट्रिंग तो जनरेट होगी. ट्राई एवरीवन विद द हेल्प ऑफ दिस पास ट्री आल्सो आई विल गेट द सेम स्ट्रिंग. यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो. फिर से पास ट्री को यील्ड करो. सबसे पहले 2 मिला, प्लस 2 इंटू 3. राइट, फॉर दिस सेम स्ट्रिंग आई एम गेटिंग 2 पास ट्रीज. पर ये दोनों सही नहीं है. क्यों सही नहीं है उसके बारे में देखते हैं. पहले ये बताओ इसका मैथमेटिकल आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन? पहले 2 प्लस 2 होगा या 2 इंटू 3 होगा? ऑब्वियसली 2 इंटू 3 होगा. राइट, सो द आंसर शुड बी 8. आंसर 8 आना चाहिए इस इक्वेशन का. नाउ लेट्स सी कि दोनों पार्स ट्री हमें आंसर क्या दे रहे हैं. दोनों पार्स ट्री स्ट्रिंग तो ये दे रहे हैं, बट दोनों पार्स ट्रीज आंसर्स अलग अलग दे रहे हैं. लेट्स सी हाउ. हियर आई एम गोइंग लाइक दिस. मुझे मिला 2. ओके, 2 प्लस, फिर ये प्लस मिला मुझे, फिर मैं ऐसे नीचे आया, यहां मुझे मिला अगेन 2. ओके, यहां पे मुझे 2 मिला, मल्टीप्लीकेशन 3. ये 2 मल्टीप्लीकेशन 3 का रिजल्ट ऊपर जा रहा है. यस और नो एवरीवन? ये 2 मल्टीप्लीकेशन 3 का रिजल्ट नीचे जा रहा है. जो भी पार्स ट्री में सबसे नीचे होगा दैट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट. तो यहाँ पे 6 ऊपर जा रहा है ऐसे. राइट, और फिर फाइनली 2 प्लस 6 8 आंसर आएगा इस पार्स ट्री में. लेट्स सी दिस पार्स ट्री फर्स्ट. इस पार्स ट्री में क्या हो रहा है? जो पार्स ट्री में सबसे नीचे है दैट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट. इस पार्स ट्री में अगर देखो तो 2 प्लस 2 पहले हो रहा है. 2 प्लस 2 नीचे है ना, तो 2 प्लस 2 का आंसर यहां से उठ के ऐसे ऊपर जाएगा इस ई के पास. इस ई के पास आंसर आएगा 4, और फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, आंसर आएगा 12. Everyone getting this point? How you have to read this pass tree? Whatever is at the bottom of the pass tree that will be evaluated first. Okay, bottom में ये e plus e है. इस e plus e का आंसर उठ के जाएगा इस ऊपर वाले e में. तो ये pass tree गलत है. This is the wrong pass tree, right? Because this pass tree is giving the answer as 12. So this is what is known as ambiguity. Okay, this is what is known as ambiguity. And this grammar जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी हो रही है, दिस इज नोन एज द एम्बिग्यूअस ग्रामर. दिस इज नोन द एम्बिग्यूअस ग्रामर. तो इसमें दिक्कत क्या है? एम्बिग्यूटी है तो दिक्कत यू हैव सीन. हमें पार्सर बनाना है. राइट, वी आर इन द सिंटैक्स एनालाइजर ट्री. ये जो काम अभी आप हाथ से कर रहे हो, ये ग्रामर देखिए और एक इनपुट स्ट्रिंग ली, इसके लिए पार्स ट्री बनाया. ये जो काम आप अभी हाथ से कर रहे हो, मैन्युअली कर रहे हो, टू डू दिस सेम वर्क वी हैव टू क्रिएट अ पार्सर. वी हैव टू राइट सम कोड. वी हैव टू राइट अ सिंटैक्स एनालाइजर और अ पार्सर कोड. एक प्रोग्राम लिखना है ऐसा जो कि ये ग्रामर लेगा और ये इनपुट स्ट्रिंग लेगा और ये पार्सर वो खुद बनाएगा. अब खुद ही सोचो, अगर मैन्युअली आपके हाथ में 2 ऑप्शन है तो कंपाइल जो ये प्रोग्राम लिखोगे यहाँ पे, इसके हाथ में भी 2 ऑप्शंस होंगे. राइट, 2 पार्स ट्री इसके पास. एक 8 वाला भी बना सकता है. इट कैन क्रिएट 12 बनता आल्सो. यस और नो? दिस प्रोग्राम दैट यू विल राइट will also have 2 options. Either it can create this 8 one or it can create this 12 one. And this program doesn't know कि इसका आंसर 8 ही आना चाहिए, है कि नहीं? हो सकता है वो ये वाला सेलेक्ट कर दे, वो 12 वाला पार्सर बना दे, तो पूरा प्रोग्राम गलत हो गया. This is the problem with ambiguous grammars. If you feed ambiguous grammars, the parser will not work. तो ये जो ग्रामर फीड कर रहे हो
सिर्फ एक ग्रामर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एक पार्सर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो कि एम्बिगुअस ग्रामर को डील कर सकता है, अदरवाइज नो पार्सर्स. We will see 5 to 6 types of parsers. No parsers apart from one can handle this ambiguous grammar. तो अगर आपके ग्रामर में एम्बिग्यूटी है तो कोई भी पार्सर पार्स ट्री नहीं बना सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा वो ये वाला पार्स ट्री बनाए या ये वाला पार्स ट्री बनाए. Okay, now to generalize this thing, can I say that if you have more than one parse tree, the grammar will be ambiguous? Yes or no? If for a grammar, for a particular string also, okay, ये ग्रामर एम्बिगियस थी. क्यों एम्बिगियस थी? फॉर दिस स्ट्रिंग, है ना, इस स्ट्रिंग के लिए एम्बिगियस थी. ऐसा नहीं कि हर स्ट्रिंग के लिए एम्बिगियस होगी, ऐसा नहीं कि हर स्ट्रिंग के लिए एम्बिगियस होगी. बट इफ अ ग्रामर गिव्स यू more than one parse tree for a particular string, that grammar will be ambiguous. True or false? If a grammar for a particular string gives you more than one parse tree, that grammar will be ambiguous grammar. True or false? True, right? Now observe my second statement. If for a particular string a grammar gives you two leftmost derivations or two rightmost derivations or more than two also, that grammar will be ambiguous. अगर एक से ज्यादा लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन है या एक से ज्यादा राइटमोस्ट डेरिवेशन है तो भी वो ग्रामर एम्बिगियस होगी. ऑब्वियसली एक से ज्यादा लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन है मतलब एक से ज्यादा पार्स ट्री भी तो बन सकता है. एक लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन के लिए एक पार्स ट्री बन सकता है, तो दो लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन के लिए ऑब्वियसली दो पार्स ट्री बनेंगे डिफरेंटली. लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन को तो हमने बस एज अ ट्री बना दिया है. We have only converted our leftmost derivation or rightmost derivation into a tree. So अगर एक से ज्यादा leftmost derivation है या एक से ज्यादा rightmost derivation है तो भी वो grammar ambiguous होगी. Now observe the third statement and think carefully before answering. If for a particular string for a grammar I have one leftmost derivation and one rightmost derivation, एक ही leftmost derivation है और एक rightmost derivation भी है, तो क्या वो grammar ambiguous है या नहीं है? Just think and answer. No, it will not be ambiguous. Okay, but again you have to listen to the question. If I'm saying you that if for a grammar, एक grammar के लिए you have only one leftmost derivation and one rightmost derivation, that grammar will be ambiguous. That is false. That grammar that you cannot say. If I'm saying you that for one grammar and one string, एक string भी मैं आपको दूं, सिर्फ grammar नहीं दूंगा, एक string भी दूंगा, and now I'm saying you that you have only one leftmost derivation and one rightmost derivation, whether this grammar is ambiguous? Answer is no. अगर string भी दे रहा हूं grammar तो अगर मैं ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये चीज सबको समझ आई पहले, अगर एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक ही राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो पार्स ट्री एक ही बनेगा, पार्स ट्री दो नहीं बन सकते. ओके, क्योंकि पार्स ट्री ऐसे बनाते हो ना, पार्स ट्री ऐसे बनाते हो. अब चाहे तुम इस ई को पहले एक्सपैंड कर दो फिर इस ई को एक्सपैंड करो, या फिर यू एक्सपैंड दिस ई फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड दिस ई फर्स्ट, दोनों दिखेंगे एक ही जैसे, दोनों चेंज नहीं हो जाएंगे. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन आर जस्ट अ वे टू एक्सपैंड, कि लेफ्ट एक्सपैंड कर रहे हैं राइट से एक्सपैंड कर रहे हैं, पर एक्सपैंड होने के बाद पार्स ट्री एक ही दिखेगा, दो पार्स ट्री नहीं दिखेंगे. गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, अगर एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो जाए और एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो जाए तो फिर वो ग्रामर एम्बिगियस हो जाएगी. ये समझ आया सबको? सिंपल सिंपल सी बात है. सिर्फ दिमाग में इतना याद रखो कि अगर एक से ज्यादा पार्स ट्री, टू और मोर पार्स ट्री बन रहे हैं तो ग्रामर एम्बिगियस है. टू और मोर लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हैं तो भी पास ग्रामर एम्बिगियस है. बट अगर एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है तो वो ग्रामर एम्बिगियस नहीं है, क्योंकि दोनों बनने के बाद एक ही जैसे, चाहे इधर से एक्सपैंड करो चाहे इधर से एक्सपैंड करो, बनने के बाद पिक्चर दोनों की सेम ही दिखेगी, पार्स ट्री विल लुक सेम. नाउ सपोज आई से समथिंग लाइक दिस, I give you a grammar like this. This is E tends to E plus T slash T. T tends to
T star E, T star F slash F, F tends to ID. Suppose I give you a grammar like this. सिर्फ ये grammar दूं मैं तुमको, and I ask you, tell me whether this grammar is ambiguous or not. What should be your answer? I haven't given you any string. I haven't given you any string. I have just given you this grammar. और मैं तुमसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछूं that please tell me whether this grammar is ambiguous or not. तुम्हारा क्या आंसर आएगा? वैसे this is not ambiguous, right? This is not an ambiguous grammar. But इसका तरीका क्या है इसको पता करने का? You have to take random strings और उसके लिए पास ट्री बनाना है, right? कैसे कह सकते हो कि this is not a ambiguous grammar? You have to take random strings and you have to draw parse trees. For example, कोई भी string ले लो, like this 2 plus, जो इस ग्रामर को बिलोंग करती है वैसी स्ट्रिंग लेनी है. ओके, फॉर एग्जांपल 2 plus 2 plus 2, ये एक स्ट्रिंग ले लो, इसके लिए पास ट्री बनाओ. क्या इसके लिए मैं दो पास ट्री बन सकता है? नहीं बनेगा. इससे कोशिश करोगे एक ही पास ट्री बनेगा. सपोज आई टेक अनदर स्ट्रिंग 2 into 3 plus 5, इसके लिए देखो क्या दो पास ट्री बन सकते हैं? इस तरह आई हैव टू टेक एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग एंड आई हैव टू क्रिएट अ पास ट्री. अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए दो पास ट्री मिल गया, किसी भी स्ट्रिंग के लिए amongst all the possible combinations, then this grammar will be ambiguous. What do you think? How many possible strings I will have from this grammar? कितनी strings हो सकती हैं इस ग्रामर से? How many possible strings I can have from this grammar, जो मुझे चेक करनी पड़ेंगी? Infinite, right? इतना टाइम क्यों लग रहा है? Infinite. Infinite number of possibilities are there. क्या आप ये सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, क्या आप सारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को चेक कर सकते हो? उनके लिए पास ट्री बना के नहीं कर सकते हो, राइट? दैट इज व्हाई दिस that whether a grammar is ambiguous or not, this is a undecidable problem. अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है undecidable problem, बट ये TOC में सुना होगा वर्ड, राइट? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं डिसाइडेबल, कुछ प्रॉब्लम होती है नॉन डिसाइडेबल, जो कि पॉलिनोमियल टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं ना. एनपी हार्ड, एनपी ये सब पढ़ा होगा ना, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में भी होता है. दिस प्रॉब्लम दैट वेदर अ ग्रामर इज ambiguous or not, this is an undecidable problem. You cannot decide simply because there are infinite number of strings possible. हर स्ट्रिंग के लिए चेक नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं आपको एक ग्रामर दूं और इसके साथ में एक स्ट्रिंग भी दूं, that take this string 2 plus 3 into 4. Now please tell me for this string and this grammar whether this grammar is ambiguous or not. This is a decidable problem, right? Because of infinite possibilities में चेक नहीं करना है. You have to create pass tree only for this string. खाली इस स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बनाना है. वो कैसे बनेगा? E tends to E plus T, T tends to T star F, E tends to T, है ना? E से T लेंगे, T से F लेंगे, F से ID लेंगे, T से F लेंगे, F से ID, F से ID. In place of this ID put 2, in place of this ID put 3, in place of this ID put 4. यही एक पास ट्री पॉसिबल है और कोई पास ट्री पॉसिबल नहीं. क्रिएट करके देखो फॉर दिस स्ट्रिंग. इज एनी अदर पास ट्री पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रिंग? क्या और कोई पास ट्री बन सकता है? नहीं बन सकता है. You are getting only one parse tree for this string, so this grammar is not ambiguous. समझ आ गया सबको? Ambiguity से प्रॉब्लम क्या होती है हमने देख लिया. Because no parser can parse a ambiguous grammar. No parser can parse a ambiguous grammar. Okay, अगर ग्रामर में ambiguity है तो उस ambiguity को हटाना पड़ेगा. पहले इस ambiguity को हटाना पड़ेगा. इसमें तो ambiguity नहीं है, पिछली वाली ग्रामर में ambiguity थी. You have to remove that and then you can say whether a grammar is then you can create a parser for your grammar. किसी को डाउट अभी तक? Any doubts? Anyone? चलो बताओ. This is the grammar. A tends to A, S, B, S, B, S, A, S, epsilon. This is the string A, B, A, B. This is the string. Tell me whether this grammar is ambiguous or not.
नाउ व्हाट आई विल डू, इस s को एक्सपैंड करूंगा मैं b s a s में, this will be made epsilon, this will be made epsilon, this will be made epsilon. क्या ये पांच ट्री सही है? a b मिल गया, a b मिल गया, राइट? ये बन गया पहला पार्स ट्री। फिर से आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सिंबल, ऑब्वियसली अगेन आई हैव द सेम ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं स्टार्ट में, यही ऑप्शन है। बट नाउ इंस्टेड ऑफ दिस s आई विल एक्सपेंड दिस s, a b मिल चुका है, दोबारा a b मैं ऐसे ले लूंगा, a s b s, इसको कर दूंगा एप्सिलॉन, आई विल मेक दिस एज एप्सिलॉन, आई विल मेक दिस एज एप्सिलॉन। फिर से मिल गया a b a b, यील्ड वैसे ही करना है, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, a मिला एप्सिलॉन मिला गायब हो गया, b मिला a मिला एप्सिलॉन मिला गायब हो गया, b मिला एप्सिलॉन मिला गायब हो गया। यील्ड ऑफ द पार्स ट्री यू हैव टू रीड सेम, तो यहां भी a b मिल रहा है, यहां भी a b मिल रहा है, क्या दोनों पार्स ट्रीज डिफरेंट है? आर दीज टू पार्स ट्रीज डिफरेंट? अलग ही है ना, देखने देख के बताओगे अलग है और कैसे बताओगे? These are different parse trees. So for a grammar, for a particular string, you are getting more than one parse tree. So this grammar, no outcome same होने से फर्क नहीं पड़ता है ना? आउटकम सेम होने से फर्क नहीं पड़ता है, doesn't matter. If you are getting more than one parse, outcome will always be same. Outcome तो हमेशा same होगा. If you get 3 parse trees or 4 parse tree, outcome will be same. Yield of the parse tree will always be same. The question here is whether you are getting 2 parse trees or not. Why? Because the compiler will get confused whether it should make this parse tree or it should make this parse tree. And compiler doesn't like confusion. If it will confuse, it will not give you the answer. You have to remove this ambiguity. Compiler should only have one option or one parse tree to make. That's it. Got this, everyone? और करो. Let's take this grammar. R tends to R plus R. R. This is a grammar for regular expression. Okay, this grammar generates regular expression. If you remember, जब regular expression पढ़ा होगा ऑटोमेटा में, तो ये grammar लिखी गई थी, इससे सारे regular expression generate कर सकते हो. Plus भी है, multiplication is also there, and clean closure operator is also there. You can generate every regular expression with the help of this grammar. Now take the, if I give you this regular expression, if I ask you, tell me whether this is an ambiguous grammar or not, what will be your answer? If I give you this grammar and I ask you, tell me whether this grammar, this is an undecidable problem. Good. Okay, now I give you a string. This is the string a plus bc. Tell me for this string whether this grammar is ambiguous or not. Everyone, quickly, this is ambiguous grammar or not? All of this. Ambiguous, right? Because obviously you have to start with the start symbol or the root node. पहला ऑप्शन क्या ले सकते हैं? दोनों ऑप्शन ले सकते हैं. Suppose first I take this r tends to r plus r, then this r will be expanded to a, this r will be expanded to r, this production, this r will be expanded to b, this r will be expanded to c. Yield of the parse tree is a plus bc. This is the first parse tree. Now second, I can take this production, instead of this production I can take this production, right? फिर इस वाले r को I can expand it something like this, r plus r. This r can be expanded to c, this r can be expanded to a, this r can be expanded to b. Again I am getting a plus bc. Which parse tree is wrong in both of them? गलत कौन सा है? सेकेंड इज रॉन्ग, राइट? व्हाई? बिकॉज सेकेंड में ए और बी पहले ऐड हो रहे हैं. सी दिस, जो बॉटम में है दैट विल बी डन फर्स्ट. इन बॉटम ए प्लस बी इज हैपनिंग फर्स्ट.
right? This is happening first. In the bottom is something like this, a plus b is happening first, and the result which will be stored at this r be multiplied with c. The result which is stored at this r is getting multiplied with c. So this is something like this. अगर suppose मैं a की जगह 2 रख दूं, instead of b I write 3, instead of c I write 1, instead of c I write 2. The correct answer should be 8. For you all pass tree, this pass tree will give the answer as 10, because 2 and 3 will be added first and then multiplied with 2. Got this, everyone? So for the same, for one string and this grammar, I am getting 2 pass trees. So this grammar is ambiguous. कोई दिक्कत परेशानी? Anyone having any doubts? Fine. So we have seen the problem, that the problem is of ambiguity. Okay, the parser will get confused which parse tree to choose. If the parser chooses the wrong parse tree, you will get a wrong answer. So if you want to supply a grammar to a parser, you have to remove this ambiguity from the grammar. अभी ambiguity आ क्यों रही है? Why this ambiguity is coming? Suppose I have this same grammar, e tends to e plus e, e star e, id. Suppose I have this grammar. I have this string 2 plus 3 plus 4. I have this string. Now for this string and this grammar, obviously this is the ambiguous grammar we have seen earlier. So इस string के लिए, for this string also you will get more than one parse tree, right? एक ऐसे बना सकते हैं. One I can make it like this. यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4. One parse tree I can make like this. Another parse tree I can make like this. I will expand this e plus e. This e will be 2, this e will be 3, this e will be 4. Right? These two parse trees are possible for this string. No, it is ambiguous. Urviza, I have said you have to remember the basic rule. If you are getting more than one parse tree, the grammar is ambiguous. अब plus के case में definitely doesn't matter, क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, राइट? आंसर सेम आ रहा है, बट ये दोनों पास ट्री सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? एकदम बेसिक्स पे जाओ कंप्यूटर साइंस की. टेल मी, प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव और प्लस इज राइट एसोसिएटिव? प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव. डेफिनेटली प्लस को तो तुम ऐसे ऐड कर सकते हो, 2 plus 3 5 कर दूंगा, 5 plus 4 9 कर दूंगा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 3 plus 4 7 कर दूंगा, 7 plus 2 9 कर दूंगा. आंसर इज सेम, बट दिस इज नॉट द करेक्ट मैथ्स. जब बचपन में मैथ्स पढ़ाई जाती है, जब बोर्ड मास रूल पढ़ाया जाता है, तो क्या बताया जाता है? Plus is left associative. First you have to add the leftmost operands. 2 plus 3. पहले जो लेफ्ट में है वो ऐड होगा, फिर जो आंसर आएगा वो राइट साइड होगा. दिस इज द करेक्ट मैथ्स. डेफिनेटली आंसर कम सेम. मल्टीप्लिकेशन अगर 2 into 3 into 4 करूंगा तो भी दो पास ट्री बनेंगे, तब भी आंसर सेम आएगा, राइट? But that doesn't mean the grammar is ambiguous. That doesn't mean the grammar is not ambiguous. Okay, if you are getting more than one parse tree, the grammar is ambiguous. ये दोनों ही पास ट्री सही नहीं है. Which is the correct pass tree? Which is the correct pass tree here? You know plus is left associative. Plus is left associative. सबसे पहले होना चाहिए 2 plus 3. 2 plus 3 सबसे पहले कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना. यहाँ पे 2 plus 3 पहले हो रही है. यहाँ तो 3 plus 4 पहले हो रहा है. जो नीचे है वो पहले होगा, right? In this parse tree you are having 2 plus 3 first. This is the correct parse tree. This is the wrong parse tree, right? Now if you see carefully here, why this problem came? क्योंकि जब मैं सबसे पहले when I wrote e tends to e plus e, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई. दिक्कत इस पॉइंट पे आई. यहाँ पे I have the chance to expand this e also. I have the chance to expand this e also, right? Yes or no? मेरे पास दोनों e expand करने के ऑप्शन आ गए. पहले वाले केस में मैंने इस वाले e को एक्सपैंड किया, दूसरे वाले केस में I have expanded this e. This is the main problem why ambiguity is coming here, right? Because I have the option to go left side also, I have the option to go right side also, right? What will happen if I block one path? I block one path. एक पाथ में रोक दूं, उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? Let's see that. This problem is coming because we have the option to expand both ways, left also, right also. Let's block one way. सिर्फ एक ही तरफ से expand करो. Let's just try to expand only on one path and see whether we can solve this problem or not.
You know plus is left associative, right? Plus is left associative. So suppose I write something like this, E tends to E plus, अब ये वाला जो E है दोबारा अगर यहाँ पे मैं फिर से E लिखूंगा तो फिर से मेरे पास तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल T से. Let's just block this with another variable T. इससे क्या होगा, स्टार्ट तो मुझे स्टार्ट सिंबल से करना पड़ेगा. आई हैव टू स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल, आई हैव टू स्टार्ट विद दिस ओनली. बट नाउ बट नाउ बट नाउ इफ यू नीड अनदर प्लस यू हैव टू गो दिस वे ओनली. इसी ई को एक्सपैंड कर सकते हो, ये टी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे प्लस के लिए, फॉर प्लस है ना. प्लस को मैंने ब्लॉक कर दिया. दिस इज हाउ यू मेक अ ग्रामर लेफ्ट एसोसिएटिव और ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव. मुझे प्लस को लेफ्ट एसोसिएटिव बनाना था, राइट? तो प्लस के पहले जो सिंबल रहेगा वो लेफ्ट साइड वाले सिंबल से मैच करा दो, वो लेफ्ट एसोसिएटिव बन जाता है. गेट दिस पॉइंट, हाउ यू कैन मेक प्लस एज लेफ्ट एसोसिएटिव. प्लस के पहले जो वर्टेक्स है उसको लेफ्ट वाले वर्टेक्स से सेम करा दो, इन दोनों को सेम कर दो. जस्ट मेक दीज टू वर्टिसेस सेम, दिस होल थिंग विल बिकम लेफ्ट एसोसिएटिव. इफ यू वांट टू मेक प्लस राइट एसोसिएटिव तो इसको ऐसे करेंगे, द सिंबल दैट विल अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ प्लस मेक इट सिमिलर टू द लेफ्ट हैंड साइड. इन दोनों को सेम कर दो तो प्लस राइट एसोसिएटिव हो जाएगा. गेटिंग पॉइंट? इफ यू वांट टू मेक एनी ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव, उस ऑपरेटर के पहले वाला जो वर्टेक्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड के सेम करा दो ताकि वो लेफ्ट में बढ़े, ताकि वो यहीं पे बढ़े, वो यहीं पे बढ़े, इधर ना बढ़े. अगर किसी ऑपरेटर को राइट एसोसिएटिव इफ यू वांट टू मेक, उस ऑपरेटर के राइट साइड को सेम कर दो एलएचएस के, तो वो राइट में बढ़ेगा खाली. ये समझ आया सबको, हाउ यू कैन मेक प्लस एस लेफ्ट एसोसिएटिव. अब ये तो बात हुई प्लस की. You have replaced this e with another variable t, right? So just write t here. Just directly pass to t. इस t का काम है मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करना. e का काम था प्लस को हैंडल करना, इस t का काम है टू हैंडल द मल्टीप्लिकेशन. So next symbol that will come is t. Okay, t tends to. Now tell me whether this multiplication is left associative or right associative. This is also left associative, but is also left associative. So I will write t before multiplication अगर इसको लेफ्ट एसोसिएटिव बनाना है. Yes, if you want to make multiplication as left associative, you have to write or you have to make the vertex that is before multiplication similar to LHS. इन दोनों को सेम कर दो, मल्टीप्लिकेशन बन गया लेफ्ट एसोसिएटिव. अब यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या आप ये लिखोगे t tends to t star t, अगर ये लिख दे तो फिर से वही एम्बिग्यूटी आ गई, इधर भी एक्सपैंड हो सकता है, इधर भी एक्सपैंड हो सकता है. yes or no? If you write t star t again, you can expand in this direction also, you can expand this, you cannot use e. Okay sweetie, you cannot use e again. क्यों यूज नहीं कर सकते हो बाद में देखेंगे. you have to use a different variable. just think logically, अगर सपोज मैंने t star e लिखा यहाँ पे तो मतलब है यहां से मैं फिर से प्लस ला सकता हूं, राइट? अगर मुझे e मिल गया तो फिर से मैं प्लस ला सकता हूं नीचे, राइट? अब थिंक लॉजिकली, अगर मल्टीप्लिकेशन भी है आपके इक्वेशन में, वो भी है और प्लस नीचे आ गया तो पहले प्लस इवैल्यूएट हो जाएगा, राइट? दैट वुड बी रॉन्ग. अब उसकी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट प्रेसिडेंस लेटर, बट यू कैन नॉट यूज द सेम सिंबल. क्यों नहीं करते अभी देखेंगे. यू हैव टू यूज अनदर डिफरेंट वेरिएबल लाइक f. सो t टेंड्स टू t स्टार f, और फिर डायरेक्टली f पे भी जा सको. और ये जो f है इसका काम है टू हैंडल द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज id. सो व्हाट वी डिड, प्लस को हैंडल करने के लिए दूसरा वेरिएबल बना दिया t, मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करने के लिए f बना दिया, एंड वी हैव कन्वर्टेड ग्रामर लाइक दिस. नाउ सी, now take this same string 2 plus 3 plus 4. now try to draw two parse trees using this grammar. obviously you have to start with the start symbol e. e के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, either you can use e plus e or you can use t. अगर t यूज कर लिया तो दोबारा प्लस नहीं आएगा. अगर t यूज कर लिया यहां से you cannot get plus again, right? क्योंकि t के बाद तो फिर t star f आएगा, f आएगा, id अगर नीचे चलते चले जाओगे. you cannot get plus back. you have to use e tends to e plus t only, this first production only. everyone got this point? you cannot use e tends to t because if you use t तुम नीचे चले जाओगे ग्रामर में, और नीचे प्लस दोबारा नहीं है, दोबारा प्लस यूज नहीं कर पाओगे. you have to use e tends to e plus t.
अब इस t को एक्सपैंड करना है, वो सब बाद में देखेंगे। यू नीड 2 + 3 + 4, 2 प्लस चाहिए, एक प्लस मिल गया। क्या मुझे t को एक्सपैंड करके कैसे भी प्लस मिल सकता है? क्या राइट साइड से आई कैन गेट प्लस एनी टाइम? कैन आई गेट प्लस ऑन द राइट हैंड साइड? यू कैन नॉट गेट। इस साइड को एक्सपैंड करके प्लस मिलेगा ही नहीं। आई हैव ब्लॉक दिस साइड। इस साइड से सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है या फिर सीधे आईडी मिल सकता है। फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस t I cannot get plus again, right? Is to e plus t। अगर मैं राइट साइड को एक्सपैंड करूंगा मुझे कभी दोबारा प्लस नहीं मिलेगा। मेरी मजबूरी है, आई एम कंपेल्ड टू एक्सपैंड दिस लेफ्ट हैंड साइड ओनली। e टेंड्स टू e प्लस t। यही ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ही नहीं है, इस t को एक्सपैंड कर ही नहीं सकता। नाउ दिस e will be expanded to t, this t will be expanded to f directly, f will be expanded to id, this t will be expanded to f, this f will be expanded to id, this t will be expanded to f, this f will be expanded to id। इस id की जगह आएगा 2, इस id की जगह आएगा 3, इस id की जगह 4 will come। पहले 2 + 3 हो रहा है क्योंकि 2 + 3 बॉटम में है, जो उसका आंसर आ रहा है वो ऐड हो रहा है 4 के साथ। हैव वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट एसोसिएटिविटी? Yes or no, everyone? What we did? We blocked one path. We blocked one side. हमने एक साइड ब्लॉक कर दी दूसरा वेरिएबल t लगा के कि इस साइड से प्लस आएगा ही नहीं। तुम्हें अगर 10 प्लस चाहिए तुम लेफ्ट साइड से ही एक्सपैंड करो। तुम्हें 10 प्लस चाहिए, इसके बाद भी प्लस चाहिए तो यहीं से एक्सपैंड करो e + t। फिर प्लस चाहिए तो यही सॉरी यहीं से एक्सपैंड करो। आई हैव ब्लॉक्ड द पाथ, ओनली लेफ्ट साइड यू कैन एक्सपैंड टू गेट अ t। तो ये सॉल्व हुई हमारी प्रॉब्लम एसोसिएटिविटी की। देखो जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है ना, ये दो वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ एसोसिएटिविटी एंड बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस ऑल्सो। प्रेसिडेंस की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रेसिडेंस की वजह से मतलब सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस 2 + 3 × 4। नाउ यू नो दैट 3 and 4 शुड बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, बट इसके लिए दो पास ट्री बन सकते हैं इस ग्रामर से, पहली वाली ग्रामर से। e टेंड्स टू e + e, इस e से id, इस e से e स्टार e, इस e से id, इस e से id। फर्स्ट पास ट्री। सेकंड पास ट्री कैसे बन सकता है? आई कैन गेट e स्टार e, पहला प्रोडक्शन, फिर इस e को एक्सपैंड कर दो e + e में, यहां से id, यहां से id, राइट? आई कैन गेट टू पास ट्रीज। व्हिच वन इज द करेक्ट वन? फर्स्ट वन, राइट? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन हैव टू हैपन फर्स्ट, multiplication has to happen first, so multiplication have to come at the bottom, right? Yes or no? Okay, and this is what you have made। ये जो ग्रामर हमने बनाई है, ये ग्रामर आपकी प्रेसिडेंस रूल को भी सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? इस ग्रामर में हमने मल्टीप्लिकेशन को प्लस से नीचे रखा है, राइट? वी हैव केप्ट मल्टीप्लिकेशन बिलो प्लस, है ना? प्लस ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन नीचे ग्रामर में। सो व्हेनेवर यू विल मेक द पार्स ट्री, ऑलवेज प्लस विल बी एट द टॉप। जब प्लस सारे खत्म हो जाएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे। कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज 2 + 3 × 4, ये मेरी 2 + 2 + 3 × 4, ये दिस इज द ग्रामर आई हैव यूज दिस इज द स्ट्रिंग आई हैव, दिस इज द ग्रामर। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ पास ट्री। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? e + t और t। ऑब्वियसली आई हैव टू टेक दिस वन ओनली, राइट? आई हैव टू टेक दिस वन। 2 + 2 + 3 है, एक और प्लस चाहिए, आई विल टेक दिस वन। दो प्लस मिल गए, दिस e will be expanded to 2, this e will be expanded to 2। एक और चाहिए होगा इसके बाद, चलो दो ही कर लेते हैं इसको। लेट जस्ट कीप इट एज 2 + 3 × 4। सो wait, let's take the grammar like 2 + 3 × 4। Okay, the first option that you have is e tends to e plus t, right? This e will be expanded to e, tell me, this e will be expanded to, you will directly expand this to 2। ये सीधे एक्सपैंड हो जाएगा 2 में, मतलब e से t जाओगे, t से f जाओगे, f से id जाओगे, id पे 2 लिखोगे। this t will be expanded to t स्टार f, t मल्टीप्लिकेशन f, राइट? दिस t, इस t से f जाओगे, f से id जाओगे, id पे 3 लिखोगे, इस f से id जाओगे, id पे 4 लिखोगे। दिस इज हाउ यू विल मेक द पास ट्री। क्या इसके सिवा और कोई पास ट्री पॉसिबल है?
Does this parse tree or this grammar solve our problem of associativity and precedence? दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. प्रेसिडेंस कैसे सॉल्व हुई? हमेशा जितने मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो नीचे आएंगे, जब सारे प्लस खत्म हो जाएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होंगे. Getting this? So overall the conclusion is that there is something known as ambiguity. Ambiguity means if for a particular string you can create more than one parse tree, our grammar will be called as ambiguous. ठीक है? And no parser apart from one parser, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, no parser can parse a ambiguous grammar. You have to remove this problem of ambiguity from the grammar. अब इस ambiguity की प्रॉब्लम को दूर करने के दो तरीके हैं. You have to solve the problem of associativity and precedence. अपनी ग्रामर में ये जो ग्रामर थी इसमें associativity लगा दो और प्रेसिडेंस लगा दो, जो कि हमने ये लगा दिया ऐसे. अब इसका कोई रूल नहीं है. There is no algorithm for this. You have to do this manually. कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो इस ग्रामर को ऐसे कन्वर्ट कर देगा. यू हैव टू डू दिस मैनुअली. और ये सिंपल है बिकॉज ऑपरेटर्स देख लो पहले कौन कौन से. मेरे पास एक प्लस ऑपरेटर. आई नो दैट प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव. देखो देखो इसको करना बहुत सिंपल है. ओके, यू आर रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो इट माइट जस्ट लुक ओवरवेलमिंग, बट डोंट वरी, वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. है ना, पूरा ग्रामर से कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद. सो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, वी विल सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ओके, करना है हाउ वी हैव टू डू. फर्स्ट यू सी कि इसमें कितने ऑपरेटर्स है. प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, राइट. दो ऑपरेटर्स है मेरे पास. यस और नो एवरीवन? प्लस मुझे पता है लेफ्ट एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है लेफ्ट एसोसिएटिव है, और मुझे ये भी पता है दैट द एसोसिएटिविटी ऑफ और दैट द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मोर देन प्लस. दिस इज हाउ आई राइट प्रेसिडेंस. कि अगर मेरी एक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन भी है प्लस भी है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर प्लस होगा, राइट. ये तीन चीजें I can identify. These three things I can identify, right? बस अब इसके हिसाब से ग्रामर लिख देनी है. I will start with start symbol E. प्लस है और स्टार है, राइट. मुझे पता है कि स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है तो स्टार ऊपर आएगा कि नीचे आएगा ग्रामर में. जिसका प्रेसिडेंस जितना ज्यादा है दैट विल बी एट द लोएस्ट लेवल, है ना. दैट विल बी एट द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे होगा. अगर सपोज एक डिवाइड भी होता, लेट्स जस्ट एक्सपैंड दिस ग्रामर. कोई नई ग्रामर देखते हैं उस पे करेंगे ये चीज. Suppose you have a grammar like this, R tends to let's take a different grammar. कोई दूसरा ऑपरेटर ही बना लेते हैं. रुको. So I have a grammar something like this. A tends to A $B slash B. B tends to नहीं, ये भी नहीं करेंगे. Let's take E tends to E star E, E plus E, E divided by E, E power E, ID. This is a grammar. Obviously this is a ambiguous grammar. ये दिख रहा है. अब तक एक्सपीरियंस हो गया होगा तुम लोगों को. ये ambiguous grammar है. कोई भी स्ट्रिंग लोगे उसके लिए दो पास ट्री बन जाएगा. Convert this into an ambiguous grammar. Remove the ambiguity. कैसे रिमूव करेंगे? We have to apply associativity and precedence rules. कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कितने ऑपरेटर्स हैं. क्या क्या ऑपरेटर्स हैं? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड पावर. ये चार ऑपरेटर्स हैं. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन. एक बार ये क्लियर होके पूरी सब क्लियर हो जाएगा. We have four operators in this grammar, everyone, right? Now just write associativity and precedence rule. सबसे पहले precedence rule लिखते हैं. सबसे ज्यादा precedence किसकी है चारों ऑपरेटर में? which one is having the highest precedence? पावर डिवीजन की नहीं है, पावर की है. पावर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस. तो पावर अपनी ग्रामर में सबसे लोएस्ट लेवल पे आएगा. पावर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस कंपेयर टू प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. तो पावर वाला सबसे नीचे आएगा प्रोडक्शन. पहली चीज क्लियर हो गई, राइट. डिवाइड अभी हटा देते हैं. क्यों हटा देते हैं? क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस होती है, कोई ज्यादा कम नहीं. और डिवाइड नहीं, डिवाइड ऐसे. नाउ टेल मी सेकंड वन, व्हिच वन इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन? बेटा डिवाइड की सेम नहीं होती है. डिवाइड की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है. मैथमेटिकली डिवाइड की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है.
व्हाट वी डू इज, आज तक तुम लोग को ऐसा पता इसलिए नहीं चला है क्योंकि हमेशा लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होता है, ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 into 3 by 4, तो पहले लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन है तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये डिवाइड होगा। इफ समथिंग इज रिटन लाइक दिस 2 divided by 4 into 3, तो पहले जो लेफ्ट में आया वो पहले इवेल्युएट होगा। ओके, सो 2 divided by 4 पहले होगा फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसीलिए कभी कभी कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो अलग आंसर आता है, एंड इन द मोबाइल यू गेट अ डिफरेंट आंसर। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बेसिकली मैथमेटिकली बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, तो अभी डिवाइड हटा देते हैं, इसका क्या करना है बाद में देखेंगे। अब बताओ, नेक्स्ट प्रेसिडेंस विल बी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट? मल्टीप्लिकेशन विल हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस कंपेयर टू प्लस। तो जो प्रेसिडेंस रूल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सबसे ज्यादा पावर की, देन मल्टीप्लिकेशन की, देन प्लस की। एवरीवन, दिस इज हाउ द प्रेसिडेंस रूल विल लुक। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जो नई ग्रामर बनेगी, इन अवर न्यू ग्रामर, सबसे लोएस्ट लेवल पे पावर होगा, उसके ऊपर वाले लेवल पे मल्टीप्लिकेशन होगा, और सबसे टॉप पे प्लस होगा, राइट? क्योंकि जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, जो सबसे पहले इवेल्युएट होगा वो सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, राइट? ये हो गया प्रेसिडेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिविटी। प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव। पावर क्या है? सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस, 2 to the power 3 to the power 4, 2 to the power 3 to the power 2, इसका आंसर क्या आता है? 2 to the power 3 to the power 2, इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी इवेल्युएटेड समथिंग लाइक दिस, पहले 3 की पावर 2 कैलकुलेट होगा, जो आंसर आएगा उसकी पावर 2 कैलकुलेट होगा, राइट? बेसिकली पावर इज राइट एसोसिएटिव, पावर इज राइट एसोसिएटिव। तो ये हमने सारे रूल्स लिख दिए। नाउ बेस्ड ऑन दीज रूल्स, कैन यू राइट द न्यू ग्रामर? लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल ई। सबसे टॉप पे क्या आएगा? प्लस आएगा, बिकॉज प्लस का प्रेसिडेंस सबसे कम है, तो प्लस तो आएगा। लेकिन इस प्लस को मैं लेफ्ट एसोसिएटिव बनाऊं या राइट एसोसिएटिव बनाऊं? इसको मैं बनाऊंगा लेफ्ट एसोसिएटिव, क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। टी एंड टी सेकेंड लेवल आएगा। इन द सेकेंड लेवल मल्टीप्लीकेशन विल कम, बिकॉज right, so multiplication will be made left associative like this. In the last level power will come, लेकिन पावर को मैं क्या बनाऊं? राइट एसोसिएटिव, तो ये एफ राइट साइड आएगा, यहां कोई और वेरिएबल लिख दो जी, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जी, इस लास्ट जी का काम क्या है? इस आइडेंटिफायर आईडी का, इट विल टेक केयर ऑफ आईडी। दिस इज माय न्यू अनएम्बिगुअस ग्रामर, जिसमें मैंने दोनों चीजों का ध्यान रखा है। आई हैव मेड दैट द प्रेसिडेंस इज इंश्योर्ड। कैसे? पावर इज एट द लोएस्ट लेवल, मल्टीप्लीकेशन उसके ऊपर, प्लस उसके ऊपर। सो प्रेसिडेंस का ध्यान रखा है और एसोसिएटिविटी का भी ध्यान रखा है। फ्राइडे 11 to 12, ओके, सो फ्राइडे 11 to 12 वी विल हैव द क्लास, जो लास्ट मंडे हमारी नहीं हुई थी, वी विल हैव ऑन फ्राइडे। फाइन, या प्रूफ, वेट, all CRs just save my number. Okay, if any issue you can just call me. Everyone use the same my number. समझ गए? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और इसके एग्जांपल्स देखेंगे, इट विल बी क्लियर। चलो जाते जाते एक छोटा सा और, just tell me, suppose I write something like this, a tends to a dollar b slash b. This is a gate question, okay, gate exam question. This is, just see,
C tends to C at the rate D D. Tell me which one is having the highest precedence. ये ऑपरेटर्स हैं, दिस डॉलर, दिस हैश एंड दिस एट द रेट इज द ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। नहीं ये चलो हो गया, यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। $2 hash 4 at the rate 2. Tell me the answer of this equation. What will be the answer of this equation based on this grammar? This type of question will be there in your test. बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? $2 hash 4 at the rate 2. $2 दो बार है, $3 hash 4 at the rate 2. What will be the answer of this equation? Everyone quickly, what is the answer of this equation? Just see the precedence and see the associativity rule. Precedence और associativity rule के हिसाब से ब्रैकेट्स लगा दो इक्वेशन में, पता चल जाए। अच्छा आंसर के लिए मैंने तो बताया नहीं, डॉलर का मतलब है प्लस, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एट द रेट का मतलब है माइनस। अब आंसर बताओ। नाउ टेल मी द आंसर। डॉलर मींस प्लस, हैश मींस मल्टीप्लिकेशन, एट द रेट मींस माइनस। एवरीवन हुआ सबका? देखो तो करने के बहुत से तरीके, जैसे कंफर्टेबल लगे करो। व्हाट यू कैन डू इज रिप्लेस कर दो पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे डॉलर था, डॉलर का मतलब था प्लस, यहाँ पे हैश था, हैश का मतलब था, डॉलर का मतलब था प्लस, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एट द रेट का मतलब है माइनस। दिस इज हाउ द इक्वेशन विल बी रिटन, राइट? दिस इज हाउ द इक्वेशन विल बी रिटन। नाउ बेस्ड ऑन दिस ग्रामर क्या पता चल रहा है? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? माइनस की सबसे ज्यादा है, फिर मल्टीप्लिकेशन की है, फिर प्लस की है, क्योंकि माइनस सबसे नीचे है ना, माइनस इज एट द लोएस्ट लेवल। फिर मल्टीप्लिकेशन की है, फिर प्लस की है, तो माइनस सबसे पहले इवेल्युएट हो, राइट? फिर मल्टीप्लिकेशन होगा इवेल्युएट लाइक दिस, लास्ट में प्लस इवेल्युएट होगा। और प्लस भी कैसे इवेल्युएट होगा? प्लस क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो पहले लेफ्ट वाला प्लस इवेल्युएट होगा, फिर इस पूरे के साथ ये इवेल्युएट होगा। मतलब 3 + 2 आंसर विल बी 5 प्लस 3 इंटू 4 - 2 1, 5 + 3 आंसर आ रहा है 3 2 6, आंसर आ रहा है 11। दिस इज द आंसर। ये 15 16 14 कैसे आ रहे हैं? बेसिक्स, बेसिक्स पे रहो, ग्रामर में जाके सिंबल को रिप्लेस कर दो, पूरी इक्वेशन फिर से लिख दो, और ग्रामर के हिसाब, अब तुम यू नो दैट कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, बट ये ग्रामर कुछ और बोल रहा है। ओके, दिस ग्रामर इज टेलिंग यू दैट द प्रेसिडेंस ऑफ माइनस सिंबल इज मोर compared to multiplication and plus, right? So minus will be evaluated first, then multiplication will be evaluated, and then finally plus will be evaluated. समझे? Any doubts, anyone? Okay, so we will continue in the tomorrow's class. Okay, chalo, thank you.